हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 2 का जो फाइनेंशियल अकाउंट है उसमें चैप्टर नंबर 1 जो है कन्वर्जेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इनटू कंपनी एटले के भागीदारी पेढ़ीનું કંપનીમાં રૂપાંતર। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को सम नंबर 35 कराने वाली हूँ। तो यहाँ पे इस समय ऐसा बोला गया है कि जैत्र एंड मैत्र आर partners of a firm sharing profit and loss in the ratio 3:2. On 1st April 2023, partnership firm was converted into Jaitram Limited. The conditions of the business purchase was as follows। ठीक है, એટલે કે તેનું ગુજરાતી અહીં આપેલું છે કે જૈત્ર અને મૈત્ર અનુક્રમે 3:2 પ્રમાણમાં અહીં નફો નુકસાન વહેંચી લેતા એક પેઢીના ભાગીદારો હતા। 1/4/2023ના રોજ તેમની પેઢીનું જૈત્રમ લિમિટેડના રૂપાંતર કરવામાં આવે છે અને ખરીદીની શરતો નીચે મુજબ છે। તો यहाँ पे फर्स्ट आप लोगों को दिया है द कंपनी took over all the assets and liabilities except furniture, book value ₹75,000 and bank balance of ₹20,000। એટલે કે અહીં આપેલું છે કે કંપની ફર્નિચર ચોપડે કિંમત 75,000 અને બેંક સિલક 20,000 સિવાય તમામ મિલકતોને દેવાઓ લઈ લે છે। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर का यहाँ पे है द कंपनी took over machineries and stock market value. Machinery is show in the balance sheet at 15% less than market price and stock show in the balance sheet is at 20% more than market price। એટલે કે અહીં આગળ તેનું ગુજરાતી આપેલું છે કે કંપની યંત્રોને સ્ટોક બજાર કિંમતે લે છે। પેઢીના પાકા સરવૈયામાંથી યંત્રોના કિંમત કરતાં 15% ઓછી કિંમતે અને સ્ટોક બજાર કિંમત કરતાં 20% વધુ કિંમતે દર્શાવેલ છે। उसके बाद थर्ड नंबर का यहाँ पे द कंपनी टूक ओवर द असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म एट द फॉलोइंग प्राइस। એટલે કે અહીં કંપનીએ પેઢીની મિલકતોને દેવાઓ નીચે મુજબ લીધા છે। ફર્સ્ટ है મશીનરી માર્કેટ વેલ્યુ पे 1 लाख। उसके बाद ઇન્સ્ટોલમેન્ટ એટલે કે અહીંયા આગળ થશે રોકાણો આપેલા છે। बुक वैल्यू पे એટલે કે ચોપડા કિંમતે આપેલા છે। उसके बाद स्टॉक दिया है मार्केट वैल्यू पे। उसके बाद डेटर्स बुक वैल्यू लेस 10% BDR। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है प्रोविडेंट फंड बुक वैल्यू पे दिया है। उसके बाद क्रेडिटर्स दिया है बुक वैल्यू पे। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ नंबर का दिया है द कंपनी विल पे 50,000 फॉर गुडविल। देयर इज नो गुडविल इन द बुक ऑफ द फर्म। એટલે કે અહીંયા આગળ તેનું ગુજરાતી આપેલું છે કે કંપની પાઘડી પેટે 50,000 આપશે અને પેઢીને ચોપડે પાઘડી નથી। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ नंबर का है द कंपनी अग्रीड टू पे 22,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट 10% प्रीमियम एंड बैलेंस इन कैश। એટલે કે અહીં ખરીદ કિંમત પેટે કંપની 22,000ના ઇક્વિટી શેર્સ દરેક 10ના એવો 10%ના પ્રીમિયમે આપશે અને બાકીના રોકડા આપશે। उसके बाद 6 नंबर का है डिसोल्यूशंस एक्सपेंसिस वेर 4,000 विच वर पेड बाय द कंपनी। એટલે કે તેનું ગુજરાતી આપેલું છે કે વિસર્જન ખર્ચ 4,000નો થયો છે જે કંપનીએ ચૂકવ્યો છે। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या जो भी डिसोल्यूशन एक्सपेंसिस हुआ है वो कंपनी ने ही ऑलरेडी पे किया है। तो ये जो एक्सपेंसिस होगा वो हम लोग जो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे એટલે કે જે માલ મિલકત નિકાલ ખાતું બનાવશું તેમાં આ જે રકમ છે 4,000 તેને લેશું નહીં। ठीक है, इस तरह से हम लोग करेंगे। उसके बाद 7th नंबर का है फर्निचर वॉज सोल्ड एट बुक वैल्यू। એટલે કે અહીં આપેલું છે કે ફર્નિચર ચોપડા કિંમતે વેચાણ કર્યું। उसके बाद 8th नंबर का है आउट ऑफ द शेयर रिसीव्ड फ्रॉम द कंपनी 7,000 शेयर वॉज सोल्ड एट ₹12 पर शेयर्स एंड रिमेनिंग शेयर्स वेर सेड बाय ધેમ ઇન ધેર પ્રોફિટ શેરિંગ રેશિયો। એટલે કે અહીંયા આગળ તેનું ગુજરાતી થશે કે કંપની પાસેથી મળેલ શેર પૈકી 7,000ના શેર ₹12ના ભાવે વેચી દેવામાં આવ્યા અને બાકીના જે શેર હતા તે ભાગીદારોએ તેમના નફા નુકસાનના પ્રમાણમાં વેચી લીધા છે અને અહીંયા પેઢીના ચોપડે। उसके बाद यहाँ पे 9th नंबर का है इन द बुक ऑफ द फर्म जनरल रिजर्व एंड वर्कर्स एक्सीडेंट कॉम्पेन्सेशंस फंड वेर ₹30,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। એટલે કે અહીં આપેલું છે કે જે પેઢી છે તેના ચોપડે સામાન્ય અનામત અને કારીગર અકસ્માત વળતરની ફંડની બાકી अनुक्रमे 30,000 અને 20,000 આપેલી છે। उसके बाद यहाँ पे 10th नंबर का है पार्टनर्स कैपिटल वॉज इन देयर प्रॉफिट लॉस शेरिंग रेशियो फ्रॉम। उसके बाद એટલે કે તેનું ગુજરાતી આપેલું છે કે ભાગીદારોએ મૂડી તેમના નફા નુકસાનના પ્રમાણમાં હતી। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को दिया है प्रिपेयर करना है फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म। એટલે કે અહીં ઉપરોક્ત માહિતી પરથી પેઢીના ચોપડે તૈયાર કરવાનું છે। ફર્સ્ટ એ રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટ એટલે કે માલ મિલકત નિકાલ ખાતું।
सेकंड है पार्टनर्स કેપિટલ અકાઉન્ટ એટલે કે ભાગીદારોના મૂડી खाता और थर्ड है यहाँ पे कैश अकाउंट એટલે કે રોકડ ખાતું બનાવવાનું છે। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे तो परचेस कंसिडरेशंस निकालेंगे એટલે કે खरीद कीमत કેટલી થશે તે निकालશું। तो फर्स्ट आप लोगों को क्या करना है तो ये यहाँ पे जितनी भी असेट्स आप लोगों को दी गई है वो असेट्स लिख देनी है, उसमें से माइनस हम लोग लायबिलिटीज़ करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे हम लोग परचेस कंसिडरेशंस निकालेंगे तो हम लोग फर्स्ट क्या लिखेंगे गुडविल એટલે કે થશે पागड़ी। तो गुडविल की यहाँ पे अमाउंट दी है 50,000 की। ठीक है, और ऐसा बोला गया है कि एक जो गुडविल है वो पहले जो फर्म का बैलेंस शीट था उसमें नहीं दी थी। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग क्या लेंगे तो यहाँ पे मशीनरी दिया है 1 लाख का। ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मशीनरी 1 लाख की એટલે કે यंत्रों आपेला છે 1 लाखना। उसके बाद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स दिया गया है 60,000 का, तो वो भी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इन्वेस्टमेंट 60,000 का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्टॉक दिया है 1 लाख का, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्टॉक और अमाउंट आएगी 1 लाख। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पे डेटर्स दिया गया है 72,000 का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डेटर्स 72,000। उसके बाद यहाँ पे आगे दिया है प्रोविडेंट फंड और क्रेडिटर्स, तो ये तो हमारे क्या हो गए लायबिलिटीज़ हो गए, तो ये दोनों हम लोग लायबिलिटीज़ में लिख देते हैं। तो अगर यहाँ पे हम लोग टोटल करें उसमें से माइनस हम लोग करेंगे लायबिलिटीज़ એટલે કે जवाबदारियों बाद करશું। ठीक है, तो उसमें आएगा यहाँ पे पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड, उसकी अमाउंट यहाँ पे है 40,000 की। और उसके बाद यहाँ पे दिया है क्रेडिटर्स એટલે કે લેણદારો આપેલા છે और यहाँ पे अमाउंट है 90,000 की। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को लिख देना है। उसके बाद अगर यहाँ पे हम लोग टोटल निकाले तो फर्स्ट हम लोग असेट्स का टोटल निकालेंगे, तो यहाँ पे 50,000 प्लस 1 लाख प्लस 60,000 प्लस 1 लाख प्लस हम लोग करेंगे 72,000, तो यहाँ पे टोटल आएगा 3,82,000। उसमें से हम लोग माइनस करेंगे 40,000 और माइनस करेंगे 90,000। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल कितना आया हम लोगों का परचेस कंसिडरेशन એટલે કે खरीद कीमत कितनी आई तो वो आई 2,52,000। ठीक है, जितनी भी टोटल असेट्स आई उसमें से हम लोग माइनस टोटल लायबिलिटीज़ करेंगे, तो यहाँ पे हम लोगों को पीसी यानी कि परचेस कंसिडरेशंस मिल जाएगा એટલે કે खरीद कीमत આવી રીતના અહીંયા આગળ મળી જશે। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि कैसे करेंगे इसको डिस्ट्रीब्यूट, तो यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि इक्विटी शेयर्स दिया गया है और दूसरा कैश दिया है। ठीक है, तो कैश कितना आएगा वो हम लोग को यहाँ पे निकालना होगा। और यहाँ पे इक्विटी आप लोगों को कितनी दी गई है तो यहाँ पे 22,000 की इक्विटी दी गई है और यहाँ पे पर शेयर उसकी प्राइस है ₹10। ठीक है, और उसके ऊपर भी 10% प्रीमियम है, तो यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे तो 22,000 इंटू हम लोग 11 करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पर रुपी 10 है और इसका भी यहाँ पे हम लोग प्लस अगर 10% करें तो ₹11 आएंगे, तो 11 इंटू हम लोग 22,000 करेंगे तो यहाँ पे 2,42,000 इक्विटी शेयर्स आ जाएंगे। ठीक है, इतने इक्विटी दिए हैं। उसके बाद जितने भी बाकी अमाउंट बची यानी कि 10,000 यहाँ पे बची, तो 10,000 जो होगी वो कैश में कंपनी देगी। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा अमाउंट को। उसके बाद आगे आप लोगों को प्रिपेयर करना होगा रियलाइजेशन अकाउंट એટલે કે અહીંયા આગળ माल मिलकत निकाल खातुं बनाववानुं રહેશે। तो भी यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है तो ये अकाउंट जब भी हम लोग प्रिपेयर करेंगे तो सबसे फर्स्ट क्रेडिट साइड એટલે કે जमा बाजू સૌ પ્રથમ અહીંયા આગળ લખવામાં આવશે પરચેસ કન્સિડરેશન્સ। ठीक है, એટલે કે खरीद कीमत लखी देवी। ठीक है, और अमाउंट यहाँ पे कितनी है परचेस कंसिडरेशंस की तो 2,52,000 हम लोगों को मिली, तो यहाँ पे 2,52,000 इस तरह से हम लोग लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्रेडिट साइड क्या आता है तो जितने भी यहाँ पे हमारे लायबिलिटीज है वो आता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोविडेंट फंड है 40,000 का, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रोविडेंट फंड 40,000। उसके बाद यहाँ पे क्रेडिटर्स कितने 90,000 के, तो वो भी हम लोग लिखेंगे क्रेडिटर्स 90,000 के। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि जो फर्नीचर था, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को दिया है फर्नीचर जो था वो यहाँ पे असेट्स में नहीं लिया है और उसकी बुक वैल्यू थी 75,000 और उसके बाद जब भी फर्नीचर को बेचा है तो उसको कितना मिला है तो 75,000 ही मिला है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को ऐसा दिया गया है कि फर्नीचर वो सोल्ड एट बुक वैल्यू। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बुक वैल्यू उसकी 75,000 है तो 75,000 का ही उसको बेचा है। ठीक है, तो हम लोग उसके बाद क्या करेंगे तो डेबिट साइड आएंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे तो यहाँ पे जो पहले की बैलेंस शीट तो दी नहीं गई है आप लोगों को, तो जितना भी यहाँ पे असेट्स है उसकी बुक वैल्यू हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फर्नीचर और उसकी अमाउंट है 75,000। ठीक है,
उसके बाद फर्नीचर 75,000 का उन लोगों ने नहीं लिया था, मगर ये हम लोग इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद जितनी भी अमाउंट आएगी वो हम लोग यहाँ पे क्रेडिट साइड लिखेंगे, ठीक है। यानी कि फर्नीचर को बेचने के बाद जितनी अमाउंट आई, यानी कि यहाँ पे 75,000 हम लोगों को मिला है फर्नीचर को सोल्ड करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फर्नीचर और अमाउंट आएगी 75,000, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को डबल एंट्री फर्नीचर की करनी होगी। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लेंगे मशीनरी। तो मशीनरी मार्केट वैल्यू पे दी गई है, तो उसकी बुक वैल्यू हम लोग किस तरह से निकालेंगे। तो फर्स्ट आप लोगों को मशीनरी लिख देना है और ब्रैकेट में कैलकुलेशन किस तरह से करना होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को मार्केट प्राइस दी गई है 1 लाख, और उसके बाद मशीनरी के बारे में ऐसा बोला गया है कि मशीनरी एंड स्टॉक एट मार्केट वैल्यू, मशीनरी इज सोन इन द बैलेंस शीट एट 15% लेस देन मार्केट वैल्यू, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 15% कम लिया है मार्केट વેલ્યુ से, એટલે કે અહીં ગુજરાતી તેનું આપેલું છે કે અહીંયા આગળ જે યંત્રો છે તેની કિંમત કરતાં 15% ઓછી કિંમતે અને સ્ટોકની બજાર કિંમત કરતાં 20% વધુ કિંમતે દર્શાવેલ છે, ठीक है। यानी कि 15% कम दिखाया, तो हम लोग क्या करेंगे, तो 100 माइनस 15 करेंगे, यानी कि 85 हम लोगों का आंसर मिला। तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, और अमाउंट आप लोगों को मार्केट प्राइस कितनी दी गई है, 1 लाख की दी गई है। तो यहाँ पे हम लोग इसकी कैलकुलेशन इस तरह से करेंगे कि अगर यहाँ पे 100 बाय हम लोग 85 करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 15% कम लिया है, तो 100 बाय 85 करना है। उसके बाद सामने आप लोगों को कितना लिखना है, तो 1 लाख अमाउंट लिखनी है, ठीक है। जितनी भी मार्केट वैल्यू है उतनी लिखनी है। यानी कि हम लोग इसकी कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे, तो 100 बाय 85 इज इक्वल टू यहाँ पे 1 लाख आप लोगों को दिया गया है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आगे हम लोग कैलकुलेशन करें तो 1 लाख इंटू 85 डिवाइडेड बाय हम लोग 100 करेंगे, ठीक है। इस तरह से जो डिवीज़न में है वो इक्वल टू के उस साइड चला जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और जो भी मल्टीप्लिकेशन में है वो इक्वल टू के उस साइड चला जाएगा तो डिवीज़न में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 85 आप लोगों का आंसर मिलेगा। यानी कि पहले 85,000 की यहाँ पे मशीनरी थी, उसके बाद यहाँ पे 15% कम दिखाई गई थी, तो वो हम लोगों ने 15% बढ़ाई, तो हम लोगों को यहाँ पे 1 लाख की अमाउंट मिली थी, ठीक है। और यहाँ पे फर्नीचर की है 75,000। उसके बाद आगे यहाँ पे मशीनरी लेने के बाद इन्वेस्टमेंट दिया गया है, એટલે કે રોકાણ આપેલા છે, उसकी बुक वैल्यू दी गई है 60,000। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इन्वेस्टमेंट और उसकी बुक वैल्यू है यहाँ पे 60,000 की, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को दिखाना होगा। उसके बाद आगे यहाँ पे स्टॉक दिया है मार्केट वैल्यू पे 1 लाख का, तो स्टॉक की भी सेम हम लोग इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। 100 बाय कितना करेंगे, तो यहाँ पे कितना कम लिया है, तो यहाँ पे कम लेने की जगह ज़्यादा लिया है 20% मोर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 120 करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 100 में प्लस 20 करेंगे, ठीक है। यानी कि डिवाइड में कितना आएगा, 120 आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे अमाउंट है उसकी 1 लाख। तो अगर यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करें उसका, तो 1 लाख इंटू 120 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे 1,20,000 हम लोग को आंसर मिलेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1,20,000, और 20% यहाँ पे ज़्यादा दिखाया था, तो 20% हम लोगों ने कम किया था, तो उसके बाद हमारी मार्केट वैल्यू 1 लाख की आई थी, ठीक है। यानी कि फर्स्ट जो पहले की बैलेंस शीट थी उसमें स्टॉक की प्राइस कितनी थी, 1,20,000। आप लोग को ये बात याद रखनी है कि जब भी हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो उसमें डेबिट साइड यहाँ पे हम लोग जितनी भी असेट्स लेते हैं उसकी अमाउंट कौन सी होती है, तो पहले जो बैलेंस शीट होती है उसकी अमाउंट हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। मगर यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं दी गई है, उसकी जगह पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो उसके ज़रिए हम लोग यहाँ पे उसकी अमाउंट निकालेंगे, ठीक है। तो स्टॉक लेने के बाद यहाँ पे डेटर्स दिया गया 10% BDR, और 10% BDR के बाद 72,000 है। तो अगर यहाँ पे हम लोग डेटर्स कितना मिलेगा, એટલે કે દેવાદારો કેટલા મળશે, तो यहाँ पे अगर 72,000 दिया है और 10% BDR कट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को कितना मिलेगा, 80,000 डेटर्स, ठीक है। એટલે કે દેવાદારો મળશે 80,000। वो किस तरह से, अगर 80,000 हमारे डेटर्स है, उसमें से माइनस अगर हम लोग 10% करें तो 72,000 हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को डेटर्स मिलेगा 80,000 का, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे दिया है प्रोविडेंट फंड बुक वैल्यू है उसकी 40,000, तो वो तो हम लोगों ने लिख ली यहाँ पे 40,000, और क्रेडिटर्स है यहाँ पे 90,000, तो वो भी हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी असेट्स दी गई थी वो हम लोगों ने ले ली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 8 नंबर के इन्फॉर्मेशन में आप लोगों को ऐसा दिया गया है कि आउट ऑफ शेयर रिसीव फ्रॉम द कंपनी 7,000 शेयर वॉज सोल्ड एट ₹12 per shares, and remaining shares were shared by them in their profit sharing ratio, ठीक है। એટલે કે અહીંયા આગળ આપેલું છે તેનું ગુજરાતીમાં કે
અહીં કંપની પાસેથી મળેલ शेयर पैकी 7,000 शेयर ₹12 भावे बेची देवामां आव्या छे। ठीक है, यहाँ पे शेयर सोल्ड किया है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, शेयर सोल्ड करने के बाद जितना भी हम लोग को प्रॉफिट हुआ है वो हम लोग यहाँ पे क्रेडिट साइड दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ शेयर और यहाँ पे अमाउंट कितनी आएगी, तो 7,000 के शेयर थे और ऊपर का पोर्शन कितना, यानी कि जो हम लोगों को परचेस कंसिडरेशंस में मिला था और रुपीज़ कितना था, 11 था और यहाँ पे ₹12 में बेचा है तो यानी कि ₹1 का हम लोगों को प्रॉफिट हो जाएगा। तो इंटू हम लोग 1 करेंगे, यानी कि यहाँ पे 7,000 आप लोगों को क्रेडिट साइड दिखाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो हम लोगों ने ले ली। उसके बाद अगर यहाँ पे हम लोग टोटल करें तो हम लोगों को प्रॉफिट मिलेगा रियलाइजेशंस अकाउंट का। ठीक है, એટલે કે માલ મિલકત નિકાલ ખાતાનો નફો મળશે। तो अगर यहाँ पे हम लोग क्रेडिट साइड टोटल करें तो 2,52,000 प्लस करेंगे 40,000 प्लस 90,000 प्लस 75,000 प्लस हम लोग करेंगे 7,000, तो टोटल यहाँ पे हो जाएगा 4,64,000। उसमें से हम लोग माइनस करेंगे डेबिट साइड तो 75,000 माइनस हो जाएगा 85,000 माइनस 60,000 माइनस 1,20,000 माइनस 80,000, तो यहाँ पे आप लोगों को अमाउंट मिलेगी 44,000। ठीक है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्रॉफिट ऑफ रियलाइजेशंस अकाउंट। ठीक है, એટલે કે અહીંયા આગળ માલ મિલકત નિકાલ ખાતાનું નફો થઈ જશે और यहाँ पे टोटल हो जाएगा 4,64,000। ठीक है, उसके बाद ये जो प्रॉफिट है उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चैत्र और यहाँ पे लिखेंगे मैत्र। ठीक है, और अमाउंट ही 44,000 की है, यानी कि इंटू हम लोग 3/5 करेंगे, इनके जो प्रॉफिट और लॉस का रेशियो है उसमें करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चैत्र की आई 26,400 और बाकी की कितनी बची, तो वो बची यहाँ पे 17,600। ठीक है, ये मैत्र के ये जो अमाउंट है वो इन दोनों के पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगी ये अमाउंट। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप लोगों को प्रिपेयर करना होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, એટલે કે ભાગીદારોના મૂડી खाता, इस तरह से आप लोगों को प्रिपेयर करना होगा और यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा कि जैत्रस कैपिटल एंड यहाँ पे आएगा मैत्रस कैपिटल। ठीक है, એટલે કે जैत्रानी मूडी और मैत्रानी मूडी, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो आप लोगों को लिखना होगा यहाँ पे बाय बैलेंस कैरीड डाउन। ठीक है, એટલે કે बाकी आगे लाव्या। अगर आप लोगों को पहले की जो बैलेंस शीट दी होती है तो उसमें से आप लोगों को पता चलता है कि यहाँ पे जितने भी पार्टनर्स है उनकी कैपिटल कितनी है। ठीक है, मगर यहाँ पे तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही दी गई है, कुछ भी यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं दी गई है। तो आप लोगों को यहाँ पे पार्टनर्स का कैपिटल किस तरह से निकालना होगा, तो फर्स्ट हम लोग अगर यहाँ पे हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सभी एसेट्स लिखते हैं और यहाँ पे सभी लायबिलिटीज़। ठीक है, तो लायबिलिटीज़ में कौन कौन सी आते हैं, तो फर्स्ट यहाँ पे चैत्र और मैत्र की कैपिटल आएगी। उसके बाद यहाँ पे हम लोग जितना भी रिजर्व होता है वो लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को ऑलरेडी रिजर्व दिया गया है, कितना है, तो यहाँ पे जनरल रिजर्व है 30,000 का और वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड है 20,000 का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 30,000 और 20,000। ठीक है, ये हमारी लायबिलिटीज़ हो गई। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे, यानी कि असेट साइड। तो फर्स्ट यहाँ पे आप लोगों को जब भी गुडविल की इन्फॉर्मेशन दी गई थी उसमें ऐसा बोला गया है कि देयर इज़ नो गुडविल इन द बुक्स ऑफ अ फर्म, એટલે કે જે અહીંયા આગળ પાકું સર્વે હતું તેમાં પાઘડીની કિંમત જ દર્શાવવામાં નથી આવી। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग गुडविल नहीं लिखेंगे। उसके बाद जितनी भी यहाँ पे असेट्स दी गई है वो हम लोग लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, तो 75,000 का फर्नीचर ले लेंगे। तो फर्नीचर आएगा 75,000 का, क्यों, क्योंकि उसकी जो बुक वैल्यू है वो आप लोगों को लेनी है। ठीक है, उसके बाद बैंक बैलेंस था 20,000 का, तो बैंक आप लोगों को लिखना होगा 20,000 का। उसके बाद यहाँ पे मशीनरी की अमाउंट कितनी है, तो मार्केट वैल्यू पे दी गई थी, तो हम लोगों ने उसकी यहाँ पे बुक वैल्यू भी निकाली थी। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी असेट्स हम लोगों ने लिखी है वो सारी यहाँ पे लिखनी होगी। ठीक है, आप लोगों को तो 75,000 का फर्नीचर का था वो हम लोगों ने ऑलरेडी लिख लिया है। उसके बाद मशीनरी है 85,000 की, तो मशीनरी में आएगा 85,000। उसके बाद आगे यहाँ पे क्या है, इन्वेस्टमेंट है ₹60,000 का। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हम लोग 60,000 का लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्टॉक है 1,20,000, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे, स्टॉक 1,20,000। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को लिखना होगा। उसके बाद आगे यहाँ पे डेटर्स दिया गया है, એટલે કે દેવાદારો આપેલા છે 80,000 तो यहाँ पे 80,000 के आप लोगों को डेटर्स लिखने होंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्ट प्रॉफिट आ गया, तो ये तो आप लोग को लेना ही नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो फाइनल असेट साइड जितना भी टोटल आएगा उसमें से माइनस हम लोग लायबिलिटीज़ करेंगे, तो यहाँ पे इन दोनों की हम लोग को क्या मिलेगी, कैपिटल। ठीक है,
वो यहाँ पे मिलेगी। तो अगर यहाँ पे हम लोग टोटल करें तो 75,000 प्लस 20,000 प्लस 85,000 प्लस 60,000 प्लस 1,20,000 प्लस 80,000, तो यहाँ पे मिलेगा 4,40,000। ठीक है, उसमें से हम लोग माइनस करेंगे यहाँ पे 30,000 और माइनस 20,000, तो आप लोगों को यहाँ पे अमाउंट मिलेगी 3,90,000। ठीक है, ये तो हम लोगों ने ले ली। और उसके बाद यहाँ पे इससे लाइबिलिटी साइड क्या और आता है, तो यहाँ पे पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड भी आता है और क्रेडिटर्स भी आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोविडेंट फंड कितना था 40,000 का और क्रेडिटर्स था 90,000 का, तो वो भी यहाँ पे हम लोग उसकी अमाउंट लिखेंगे 40,000 एंड 90,000। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 3,90,000 जो अमाउंट आया उसमें से माइनस हम लोग करेंगे 40,000 और उसके बाद माइनस करेंगे 90,000। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी अमाउंट कितनी बची 2,60,000, यानी कि कैपिटल यहाँ पे कितनी हो जाएगी 2,60,000 की। ठीक है, ये दोनों मिला के हो जाएगी यहाँ पे 2,60,000 की। देन उसके बाद यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, तो ये जो अमाउंट है इन दोनों में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो फर्स्ट 2,60,000 इंटू हम लोग 3/5 करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को रेशियो दिया है 3:2। ठीक है, तो इसके रेशियो में हम लोग ये अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो चैत्र के अकाउंट्स में आएगा 1,56,000 और मैत्र के अकाउंट में यहाँ पे हम लोगों को अमाउंट मिलेगी 1,04,000। ठीक है, तो आप लोग को लिखना होगा 1,04,000। तो इस तरह से जो अमाउंट मिली वो हम लोग यहाँ पे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, लेके बाकी आगे लाव्या। और यहाँ पे चैत्र के अकाउंट में आएगी 1,56,000 और मैत्र के अकाउंट में आएगी 1,04,000। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को लिख देना है। उसके बाद जितना भी प्रॉफिट था रियलाइजेशन अकाउंट का वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, એટલે કે માલ મિલકત નિકાલ ખાતાનો જેટલો પણ નફો હતો તે અહીંયા આગળ આપણે લખવામાં આવશે। ठीक है, तो यहाँ पे कितना था चैत्र में 26,400, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 26,400 और मैत्र का यहाँ पे था 17,600। ठीक है, तो वो भी हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आगे आप लोग को क्या करना है, तो आगे यहाँ पे जितनी भी रिजर्व दी गई है, ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट दिया है जनरल रिजर्व, तो वो भी हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पे जनरल रिजर्व એટલે કે સામાન્ય અનામત આપેલી છે, उसकी अमाउंट है यहाँ पे 30,000 की। ठीक है, ये रही 30,000 की जनरल रिजर्व। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जनरल रिजर्व એટલે કે सामान्य अनामत और उसकी अमाउंट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करें तो 30,000 इंटू 3/5 करेंगे तो अमाउंट हम लोग को मिलेगी 18,000। उसके बाद ऊपर का जितना भी पोर्शन बचा वो आएगा 12,000। ठीक है, वो जाएगा चैत्रस के अकाउंट में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऐसा दिया गया है कि वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड 20,000 का दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अमाउंट को भी यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो में। तो यहाँ पे लिखना होगा वर्कर्स कंपेंसेशन फंड એટલે કે કારીગર અકસ્માત વળતર જે છે તેના માટે। ठीक है, तो यहाँ पे 20,000 इंटू 3/5 करेंगे तो हम लोगों को अमाउंट मिलेगी 12,000। उसके बाद माइनस हम लोग करेंगे 20,000, तो बाकी का जितना भी 8,000 बचा वो जाएगा मैत्रस के अकाउंट में। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद आगे आप लोग को क्या करना है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना होगा, तो डेबिट साइड क्या आएगा, तो इक्विटी शेयर्स आएगा। तो इक्विटी शेयर्स के बारे में ऐसा बोला गया है कि यहाँ पे जो 7,000 यहाँ पे टोटल 22,000 इक्विटी शेयर्स दिए थे। ठीक है, परचेस कंसिडरेशंस में। उसके बाद यहाँ पे 7,000 के जो शेयर थे वो सोल्ड कर दिए। उसके बाद के जितने भी रिमेनिंग शेयर्स बचते हैं उसको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो में दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टोटल 22,000 शेयर्स थे, उसमें से माइनस 7,000 हम लोगों ने सोल्ड कर दिए, तो 15,000 के शेयर बचे और यहाँ पे अमाउंट कितनी आएगी, तो यहाँ पे अमाउंट आएगी 11। ठीक है, ये जो हम लोगों ने परचेस कंसिडरेशंस में निकाला था ₹11। ठीक है, वो यहाँ पे हम लोग इंटू करेंगे 11, तो हम लोग को फाइनल अमाउंट मिलेगी 1,65,000। यानी कि इक्विटी में आप लोग को 1,65,000 का डिस्ट्रीब्यूट करना होगा प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो में। ठीक है, तो 1,65,000 इंटू हम लोग करेंगे 3/5, तो यहाँ पे हम लोग को अमाउंट मिलेगी 99,000। तो 99,000 आएगा चैत्रस के अकाउंट में। उसके बाद जितना भी रिमेनिंग बचा वो जाएगा मैत्रस के अकाउंट में। ठीक है, तो 66,000 यहाँ पे आएगा और उसके बाद जितनी भी अमाउंट बचती है वो जाएगी कैश अकाउंट में। ठीक है, એટલે કે जैसे रोकड़ खाते। तो यहाँ पे अगर हम लोग निकालें तो फर्स्ट हम लोग क्रेडिट साइड का टोटल करते तो 1,56,000 प्लस 26,400 प्लस 18,000 प्लस 12,000, तो यहाँ पे हम लोग को अमाउंट मिलेगी 2,12,400। उसमें से माइनस हम लोग करेंगे 99,000, तो यहाँ पे कैश अकाउंट में जाएगा चैत्रस में हम लोग लिखेंगे 1,13,400। ठीक है,
ये हम लोग कहाँ पे लेके जाएंगे, तो कैश अकाउंट में लेके जाएंगे। उसके बाद मैट्रेस के क्रेडिट साइड का टोटल अगर हम लोग करें तो यहाँ पे 1,04,000 प्लस करेंगे 17,600 प्लस हम लोग करेंगे 12,000 प्लस 8,000, तो यहाँ पे टोटल मिलेगा 1,41,600। उसमें से माइनस हम लोग करेंगे 66,000, तो यहाँ पे हम लोग को अमाउंट मिलेगी 75,600। ठीक है, ये अमाउंट भी हम लोग कहाँ पे लेके जाएंगे, तो कैश अकाउंट में। तो इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना होगा। ठीक है, और यहाँ पे टोटल भी आएगा 2,12,400 और यहाँ पे आ जाएगा 1,41,600। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को बनाना होगा। उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को बनाना होगा कैश अकाउंट। ठीक है, એટલે કે रोकड़ खातू। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो फर्स्ट जहाँ यहाँ पे कैश नहीं ली है तो यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, એટલે કે बाकी आकर लाव्या। उसकी बैंक बैलेंस यहाँ पे दी गई थी 20,000 की, तो वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो कैश अकाउंट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कैश अकाउंट जितनी भी डेबिट थी वो हम लोग यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे आएगी चैत्रस कैपिटल अकाउंट और अमाउंट आएगी 1,13,400 और यहाँ पे मैत्रेस के कैपिटल अकाउंट में हम लोग लिखेंगे 75,600। ठीक है, इस तरह से आप लोग को लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे जितनी भी माइनस में यानी कि जितनी भी डिफरेंस की अमाउंट निकलेगी वो हम लोग कंपनीज के अकाउंट में लेके जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं, तो 1,13,400 प्लस करेंगे 75,600, तो यहाँ पे अमाउंट मिलेगी 1,89,000। तो आप लोगों को इस तरह से लिखनी होगी 1,89,000। उसमें से माइनस करना होगा 20,000 जो डेबिट किया है। ठीक है, और बाकी की जितनी अमाउंट बची 1,69,000 वो हम लोग कहाँ पे लेके जाएंगे, तो कंपनीज अकाउंट में लेके जाएंगे। ठीक है, और टोटल यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1,89,000। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग बनाएंगे कैश अकाउंट। ठीक है, એટલે કે રોકડનું ખાતું। तो यहाँ पे जब भी इस तरह का सम आप लोगों को पूछा जाए तो इस तरह से आप लोगों को उसका कैलकुलेशन करना होगा। ठीक है, ये सम जो है वो मोस्ट टाइम की सम है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को बैलेंस शीट नहीं दी गई इसीलिए। ठीक है, तो आप लोग को ये आना चाहिए कि बैलेंस शीट हम लोग किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 35 था वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।